Hello everyone, I am back again with new MCQ series as many of you have requested that sir objective question से बहुत अच्छी conceptual clarity मिलता है। तो इस बार भी मैं बहुत अच्छे objective questions ला रहा हूँ and I will explain all 4 options of every question properly so you can get associated concepts and thinker very well. So please make notes wherever it is needed. So let's start with the question number 1. So guys, come to the first question. Which of the following term is not associated with the concept of sociological imagination? Option A, biography. B, community. C, society. D, history. We all know that sociological imagination के 3 parts हैं, that is biography, history and society. Right? Society, say you can say it as social structure also. So sociological imagination में होता क्या है? What C. Wright Mills talked when he explained sociological imagination? He said that to understand individual problem you have to correlate with public issue. Means मेरे को कोई प्रॉब्लम है, जैसे मैं अनएम्प्लॉयड हूं, तो देखना है कि यार सोसाइटी में बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड हैं। सो अगर सिर्फ मैं अनएम्प्लॉयड हूं देन इट्स नॉट ए सोशियोलॉजिकल इश्यू, ये गवर्नमेंट का कोई कंसर्न नहीं होना चाहिए। बट व्हेन अनएम्प्लॉयमेंट इज लार्ज स्केल देन यू कैन से दैट थ्रू सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन यू इक्वेटेड माई प्रॉब्लम with problem existing in wider society. All right, तो sociological imagination समझ में आ गया. It operate at the intersection of history, biography and society. शॉर्टकट में आप ऐसे भी एज ए निमोनिक आप उसको HBS भी याद कर सकते हो, हिस्ट्री, बायोग्राफी and society or social structure. C. Wright Mills is very important thinker guys. His perspective is conflict theory. C. Wright Mills के other important contribution क्या क्या हैं बताओ sociology में? Yes, white collar, the American middle class and power elite. Elite theory, Pareto, Mosca, Roberto Michael, the classical elite theory, right, which came in response to Marxism. But this guy C. Wright Mills observed a new kind of power elite phenomena. New elite were created in America in 1960. And who were these elite? 3 different groups: the major corporation, the top politicians and top military officers. You should remember the 3 concepts of C. Wright Mills. The first one, sociological imagination, then white collar, and the third one is power elite. And interestingly, ये इनका concept भी है और ये इनके बुक का भी नाम है। इन्होंने मिडिल क्लास के बारे में बोला ना व्हाइट कॉलर में। अब चलो जल्दी से बताओ कि इंडिया में व्हाइट कॉलर पे सबसे अच्छी या सबसे फेमस किताब किसने लिखा है? जी हाँ, B.B. मिश्रा, अबाउट इंडियन व्हाइट इंडियन मिडिल क्लास। ऑलराइट, B.B. मिश्रा, बांके बिहारी मिश्रा। सो ये समझा दिया मैंने और आपको ज्यादा अच्छे से क्रिस्टल क्लियर के लिए थोड़े से मैंने कॉन्सेप्ट और भी डाल दिए हैं कि सी राइट मिल्स ने कहा क्या था। He said that neither the life on an individual nor the history of a society can be understood without understanding both. यानी आपको चाहे सोसाइटी को समझना हो या आदमी को समझना हो, आपको दोनों की हिस्ट्री को और उनके कोरिलेशन इंटरसेक्शंस को भी समझना होगा। हियर यू कैन से सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन इज बायोग्राफी, सोसाइटी, हिस्ट्री। सोसाइटी को आप सोशल स्ट्रक्चर से भी समझ सकते हो, राइट? इट्स आई मीन सिनोनिमस हियर। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कंसेप्चुअलाइज द कॉन्सेप्ट टाइमलेस टाइम? जल्दी से बताओ, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. हु कंसेप्चुअलाइज? चलो ऑप्शंस देखते हैं. सबसे पहले एंथनी गिडेंस, नहीं. मैनुअल कैस्टेल, यस इट्स द मैनुअल कैस्टेल. डैनियल बेल, नो. रोनाल्ड रॉबर्टसन, नो. सो एंथनी गिडेंस का कॉन्सेप्ट क्या है?
So most important concept of Anthony Giddens is structuration. All right, where he tried to resolve the debate between structure and agency. Then he talks about double hermeneutics. And then he talks about third way. अभी इलेक्शन चल रहा है ना, right, left, ये सारा. So he says that centrist or being at center to right or left is the third way of doing politics. तो ये तीन concept एंथनी गिडेंस का आप याद रखोगे. Manuel Castell, yes, not only timeless time, he also talked about spaces of flow. All right, so ये दो concept, timeless time and spaces of flow, you should remember. Right, Manuel Castell, his most important book is The Rise of Network Society. जहां कहीं भी नेटवर्क सोसाइटी की बात हो, मैनुअल कैस्टल आपके माइंड में आना चाहिए. ऑलराइट, सो द राइज ऑफ नेटवर्क सोसाइटी, मैनुअल कैस्टल, इन विच ही टॉक्स अबाउट द टाइमलेस टाइम एंड स्पेसेस ऑफ फ्लो. मैनुअल कैस्टल, apart from the rise of network society, timeless time, spaces of flow, he has also given a very important concept, that is collective consumption, where he talks about, say, roadways, rail, anything that affect entire collectivity. His another most important book is The Urban Question. Urban Question नेट JRF में कई बार आया हुआ है. So all these concept of Manuel Castell, you should remember: spaces of flow, timeless time, urban question, collective consumption. Now come to the another option, that is, so now come to the Daniel Bell. Daniel Bell popularized the term post-industrial society in the book The Coming of Post-Industrial Society. His another famous book is, can anybody tell? Please. End of Ideology. Right? चलो नीचे कमेंट में लिखो कि द बुक एंड ऑफ हिस्ट्री किसने लिखा है. बहुत इंपॉर्टेंट किताब है. नाउ लुक एट द लास्ट ऑप्शन, दैट इज रोनाल्ड रॉबर्टसन. Ronald Robertson popularized a term called glocalization, in which global and local make some kind of adjustment. इंडिया में देखा होगा आपने एग्जाम्पल, राइट, आलू टिक्की बर्गर इंडियन मार्केट को टैप करने के लिए, बिकॉज इंडिया में बहुत सारे लोग वेजिटेरियन भी हैं. All right, also you can see that in India, McDonald's, they don't sell the beef product. All right, so this is called glocalization, means global की चीजों को ले करके locally adjust करते हो. All right, now come to the next question. So question number 3, the third wave of feminism is synonymous with, the third wave of feminism is synonymous with option A, suffrage movement, Me Too movement, intersectionality and reproductive rights. So third wave of feminism was essentially synonymous with intersectionality. Who coined the term intersectionality? Kimberly Crenshaw. It's very important question. Suffrage movement, first wave of feminism. Reproductive right, second wave of feminism. Me Too movement, currently fourth wave of feminism. You should remember all these things. There is another term that is associated with second wave of feminism, and that is called personal is political. Now you will tell me that who has coined the term. नीचे लिखो किसी अगले वीडियो में, या जहां फेमिनिज्म एक्सप्लेन करूंगा वहां पे डिटेल में समझा दूंगा. लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. So question number 4, sociology is a science which attempt interpretative understanding of social action. This definition is associated with option A, Emile Durkheim, Max Weber, Karl Marx, Auguste Comte. So Emile Durkheim defined sociology that sociology is study of social fact through social institution. वैसा तो नहीं है,
यहां पे क्या है? सोशियोलॉजी इज साइंस विच अटेम्प्ट इंटरप्रेटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल एक्शन. So who talks about social action? None other than Max Weber, and you should remember the entire definition, especially if you are preparing for UPSC, NET JRF या CUET में. तो वहां पे ऑप्शंस आपको दिए होते हैं प्लेटर पे, आपको चूज करना है. तो वो फेंटली भी आपको याद है तो कर लोगे, बट अगर आपको लिखना पड़ जाए तो वो चीज आपको यू हैव टू कीप इन योर माइंड. सो इमाइल दरखेम का क्या था? सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोशल फैक्ट थ्रू सोशल इंस्टीट्यूशन. मैक्स वेबर का डेफिनेशन तो ये है ही. कार्ल मार्क्स नेवर डिफाइंड सोशियोलॉजी. अगस्त कॉम्ट का डेफिनेशन बहुत सिंपल है. ही वाज पॉजिटिविस्ट. सो सोशियोलॉजी इज ए साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी, राइट? दैट्स हाउ अगस्त कॉम्ट डिफाइंड सोशियोलॉजी. फॉर अगस्त कॉम्ट, scientific study is very important. Now come to the next question. Who observed the epistemological break in Karl Marx writing and ideas? So कार्ल मार्क्स की जो राइटिंग है या आइडियाज है उसमें देखोगे कि यंग मार्क्स जो था वो हेगल के आइडियाज को फॉलो करता था. What did Hegel say? Dialectic idealism. Society changes through dialectics. And how does dialectics operate? Through idea. There is a idea called thesis statement, and there would be opposite idea called antithesis, and then there will be synthesis, and synthesis statement itself become the thesis statement. All right. So young Marx was Hegelian, but when he grew up, he accepted the dialectics, but he rejected the idealism. He in fact supported materialism. Marx took materialism from Ludwig Feuerbach. So dialectics from Hegel, but materialism from Ludwig Feuerbach. And who observed this epistemological break and popularized? See the option. Gramsci? No. Weber? No. Althusser? Yes, it was Louis Althusser who observed epistemological break, that is called young Marx and mature Marx. All right. Popper? No. So what can be the expected question from Gramsci? Gramsci का वीडियो बनाया हुआ मैंने, आप जाके देख सकते हो. So Gramsci ने बहुत सारी चीजों की बात करा है, but most important thing that his book is Prison Notebook, and he coined the term called subaltern. अब तो subaltern study भी है, right? So what subaltern means? Inferior in the rank. All right, inferior in the rank. For example, इंडिया में किसको subaltern कह सकते हो? जो सोसाइटी में मार्जिनलाइज थे, they can be called as subaltern. इसके अलावा ग्रामसी का क्या कंट्रीब्यूशन है सोशियोलॉजी में? He was say cultural Marxist. So he talks about cultural hegemony. Hegemony of bourgeoisie. He argued that bourgeoisie not necessarily rule by force. Mostly they rule by creating opinion in their favor, and he called those opinion in their favor what? Cultural hegemony. Now come to Weber. So Weber के बारे में आप खूब अच्छे से जानते हो, बहुत सारे वीडियो में वेबर का डिस्कशन आया है पिछले वाले वीडियोस में. Karl Popper. Karl Popper is an interesting person in sociology, although he was philosopher of science. All right. So his most famous book is LSD, The Laws of Scientific Discovery, where he talks about empirical falsification. अगर आप इमाइल दरखीम को याद करोगे तो आपको याद आएगा कि his approach was inductive. सबसे पहले जाओ डाटा कलेक्ट करो. He said that inductive approach is not necessary should be followed. Rather than you can go through deductive approach. So
build a theory, collect data, test it. As long as data support the thesis, you can continue with it, right? When it is rejected by data, you discard it and build new theory. So he talked about deductivism. He supported deductivism. Another interesting contribution, his book Open Societies and Its Enemy, where he termed three persons as enemy of open society. Who are these three persons? Plato, Hegel and Karl Marx. So Karl Popper is one of the greatest critics of Karl Marx. What he said about Karl Marx theories? That these theories are not falsifiable. How you can say that what will happen in the future? From where you will get the data? You have to go to the future. So Marx, who claimed himself scientific, is not as scientific as he claims, according to Karl Popper. Alright, so next come to the next question. So this question is about substantialization of caste is coined by Srinivas Bete Dumo Desai. The correct option is Louis Dumo. He said that nowadays it is observable that caste has become impregnable and isolated from other caste group. यहाँ पे ये कह रहा था कि पहले कास्ट डिफरेंट कास्ट ग्रुप में एक्सचेंजेज होते थे, तरह तरह के से जजमानी सिस्टम था, बट जब उन्होंने अपना फील्ड वर्क किया तो ये ऑब्जर्व किया कि सारे कास्ट जो हैं वो एक इम्प्रेग्नेबल आइसोलेटेड ब्लॉक्स बना के रह रहे हैं. यानी एक कास्ट यूनिट यहां है, दूसरी कास्ट यूनिट यहां है, तीसरी कास्ट यूनिट यहां है. पहले क्या होता था कि कास्ट ऐसे था, एक दूसरे से इंटरैक्ट करते थे, अब वो बिल्कुल सेपरेट हो रहे हैं, राइट? सो ही गेव दैट टर्म substantialization of caste to explain the separation and becoming impregnable social blocks, all right, of different caste. M.N. Srinivas की टर्मिनोलॉजी क्या क्या है? सबसे पहले तो डोमिनेंट कास्ट है, राइट, संस्कृताइजेशन है, वेस्टर्नाइजेशन है. रिमेंबर, he did not use modernization. Why? Because modernization is a value loaded concept. Anything that is modern is believed to be better than tradition. So he used westernization to remain value neutral. Another thing is, he said dowry is a modern sati. Why? Because those days when M.N. Srinivas was writing, so many women were dying due to stove explosion. बहुएं जनरली होती थी, राइट? और उसने ऑब्जर्व किया कि डाउरी के वक्त पहले लड़कियां सती करती थी ना, वो पर्टिकुलरली बंगाल रीजन में, राइट? इफ हस्बैंड वाज डाइंग, सो वुमेन देमसेल्फ और थ्रू फोर्स दे विल पुश्ड इनटू द फ्यूनरल पायर. ऑलराइट, सो नाउ सेम थिंग इज हैपनिंग ड्यू टू डाउरी. डाउरी का डिमांड फुलफिल नहीं हुआ, बहू को जला दिया. सो ही सेड डाउरी एज ए मॉडर्न सती. सो ये M.N. श्रीनिवास हैं. आंद्रे बेते के बारे में क्या क्या चीजें हैं बता सकते हो? आंद्रे बेते का मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है कास्ट को लेकर के? कास्ट ओल्ड इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय कास्ट न्यू. आंद्रे बेते को किसी सेपरेट वीडियो में अच्छे से बता दूंगा. A.R. देसाई के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है उनका मोस्ट फेमस बुक SBIN, सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म. ऑलराइट, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following sociologists introduced the terminology culture of poverty? This terminology is very famous to explain poverty. And who coined it? Option A, Oscar Lewis, Robert Redfield, Jan Breman, Antonio Gramsci. The correct answer is Oscar Lewis. He coined the term culture of poverty. Means those who are poor people, they have a particular type of culture that perpetuate poverty. Means they prefer leisure, they don't want to work, they don't put enough effort to get educated. Later on, these theory was thoroughly discarded. So अभी भी question में तो दिख जाता है, but as a thesis, as a theory, this has been discarded. Robert Redfield के बारे में आपको क्या पता होना चाहिए कि इन्होंने कॉन्सेप्चुअलाइज किया क्या? बताओ. यस,
little tradition and great tradition. He did his field work in Mexico, Tapposalan village. All right. Jan Bremen, very famous Dutch economist, sociologist as well. He talked about footloose labor. Footloose labor. What is footloose labor? यानी कि आज यहां पे हैं, कल वहां पे हैं, जरूरत हुआ तो पोस्टकार्ड लगा लिया, या फिर कहीं कंस्ट्रक्शन पे काम कर लिया, कहीं पे कुछ और काम कर लिया, यानी वो फुट लूज है, द मिनिमम स्केल है, मिनिमम स्किल है उनका, और उनके वेजेस भी बहुत कम होते हैं, वो एक जगह से दूसरे जगह जा सकते हैं। ऑलराइट, अगर कोई डॉक्टर है, वो स्किल है, वो इमीडिएटली शिफ्ट नहीं कर सकता, अगर शिफ्ट करेगा तो एक हॉस्पिटल से दूसरे जगह हॉस्पिटल शिफ्ट करेगा, या उसकी अपनी क्लिनिक है उसको सेटअप करने में टाइम लगेगा, राइट। सो डॉक्टर फुटलूज नहीं होगा, बट जो मैनुअल लेबरर हैं उनमें कोई पर्टिकुलर स्किल नहीं है, उनको लेबर का काम यहां करना है, लेबर का काम वहां भी करना होगा, तो दे विल एक्ट एज ए फुटलूज लेबरर्स। ऑलराइट, बाय यान ब्रीमन, एंटोनियो ग्राम्सी। अभी डिस्कस किया इनके कुछ कॉन्सेप्ट, प्रिजन नोटबुक, राइट, और क्या क्या किया बताओ? वेरी गुड, ही कॉइन्ड द टर्म, चलो बताओ। यस, सबाल्टर्न। और कोई भी कॉन्सेप्ट अगर नया मिले तो लिख लो। एक बात और, मेनी ऑफ यू हैव टोल्ड मी गाइज that my question answer series motivate you to study, along with that it clear your concepts. So मेरे को भी मोटिवेशन चाहिए, वो मोटिवेशन कैसे मिलेगा? नीचे कमेंट करो, राइट, जो जहां जहां भी मैं तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं वहां पे कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और अपने सोशियोलॉजिस्ट फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर को फॉरवर्ड कर सकते हो। मेरे वीडियो जो सोशियोलॉजी बैकग्राउंड के नहीं है उनको फॉरवर्ड करने की कोई जरूरत नहीं है। ऑलराइट, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द बुक टू द ऑथर्स। इस तरीके के क्वेश्चन गाइस बहुत आते हैं, तो तुम्हें बुक के नेम एंड देयर ऑथर माइंड में रखना पड़ेगा, राइट। और याद रहे कि एग्जाम से पहले इन चीजों को रिवाइज करके जाना होता है। ये चीजें कुछ किताब और उनके ऑथर को यू विल नेवर फॉरगेट, बट ओकेजनली यू माइट फॉरगेट सम फ्रिंज बुक एंड दे माइट आस्क। one book called Kinship Organization of India, right? I call this book KOI, K-O-I, Kinship Organization in India. This is one of the very famous book written by none other than Iravati Karve, in which divide India into 4 distinct cultural region, that is North, South, सेंट्रल इंडिया एंड ईस्टर्न इंडिया। सो वेस्टर्न इंडिया कुछ नहीं है, वेस्टर्न इंडिया को उन्होंने सेंट्रल इंडिया में ही रख दिया था। तो रिमेंबर, दिस इज नॉट ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, दिस इज लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल डिफरेंशिएशन ऑफ इंडिया। वो इंडिया में जो किनशिप पैटर्न है वो कैसे ऑपरेट करता है इन 4 जोन में, उस सेंस में उन्होंने क्लासिफाई किया था इंडिया को। उस सेंस में उन्होंने इंडिया को 4 डिफरेंट जोन में डिवाइड किया था, राइट। सो सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, अभी मैंने बताया AR देसाई के बारे में। सो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक ऑफ AR देसाई। यू शुड रिमेंबर द कॉन्सिक्वेंस ऑफ मॉडर्निटी। दिस इज बुक ऑफ नन अदर देन एंथनी गिडेंस। यू शुड रिमेंबर ऑल द बुक ऑफ एंथनी गिडेंस along with ईयर। आगे वाले क्वेश्चन में मैं करा दूंगा, नीड नॉट टू वरी, सब याद हो जाएगा। सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन, ऑफ कोर्स पहला क्वेश्चन आपने किया तो आपको पता होगा, सी राइट मिल्स। अब देखो तुमको कैसे याद करना है, धीरे धीरे नॉलेज को कैसे बढ़ाना है। सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि ये कॉन्सेप्ट किसका है। सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन, ये कॉन्सेप्ट भी है, सेम नाम की बुक भी है, तो ये सी राइट मिल्स का है। फिर तुम सी राइट मिल्स की बाकी किताबों के बारे में जानो, फिर उनका पर्सपेक्टिव जानो, कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव से हैं। फिर ईयर जान लो इन किताबों का, ऑलराइट। फिर एसोसिएटेड चीज भी जान लो सी राइट मिल्स से। फॉर एग्जाम्पल, he criticized abstract empiricism and he coined the term grand theory. तो ये सारी चीजों को आपको ग्रेजुअली, ये चीजें एक साथ नहीं होगा, धीरे धीरे आपके नॉलेज का लेवल बढ़ता जाएगा और एक समय नॉलेज का लेवल इतना अच्छा हो जाएगा कि नेट जेआरएफ तो कुछ भी नहीं है, बहुत इजीली आप
क्वालिफाई कर जाओगे. एंड आई एम टेलिंग यू विथ माई ओन एक्सपीरियंस. I got record marks in NET JRF, all right, by using the same method that I am telling. Gradually you have to build up the knowledge. एक बार nobody can reach to the Everest suddenly. हाँ, अब ये मत बोलना उसको हवाई जहाज से ड्रॉप कर दो, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी. बट उसको क्या होगा, पहले बेस कैंप में जाएगा, फिर एक्लेमेटाइज करेगा, फिर थोड़ा चढ़ेगा, फिर रेस्ट करेगा. लाइकवाइज अल्टीमेट थिंग इज टू क्वालिफाई JRF विद वेरी गुड मार्क्स. सिर्फ क्वालिफाई करने से बात नहीं बनेगा. ऑल राइट. और सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन. अब आते हैं द लास्ट क्वेश्चन में. मैच, नो, देयर शुड बी वन मोर क्वेश्चन. या इट इज द सेकंड लास्ट क्वेश्चन. सो मैच द फॉलोइंग्स. सो गाइज, ऑल दोज लॉज which had sociological significance should be on the tip of your tongue. Why? Because these laws has been used to direct our social change in particular way. ऑलराइट, तो लॉज पूछते हैं, बुक के नाम पूछते हैं, तो ये आपको आने चाहिए. चलो देखते हैं. डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट अच्छा कब आया था? हिंदू मैरिज एक्ट कब आया था? राइट टू एजुकेशन कब आया था? SC/ST प्रिवेंशन ऑफ अट्रॉसिटीज एक्ट कब आया था? सो डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट केम इन 1961. हिंदू मैरिज एक्ट सबसे पहले क्या आया? स्पेशल मैरिज एक्ट. ये कब आया? 54 में. एंड देन क्या आया? हिंदू मैरिज एक्ट. ये कब आया? 55 में. एंड देन क्या आया? हिंदू सक्सेशन एक्ट. राइट, ये कब आया? 56 में. तो ये तीनों के ईयर आपको याद रखने होंगे. ऑल राइट. राइट टू एजुकेशन, एवरीबॉडी नोज दैट इट केम इन. Right to education, everybody know that it came in 2009. SC/ST Prevention of Atrocity Act, it came into 1989. So these questions are easy. Yes, अगर वो कोड देते हैं, पहले का B, सेकंड का D, तो उसमें अगर एक दो भी आपको आता है, then you can easily do such matching question. So matching question is not very difficult, just to know certain concept and then little bit of analytical skill. Guys, आने वाले वीडियो में मैं ये भी बताऊंगा कि कम नॉलेज में अधिक से अधिक क्वेश्चन कैसे सोल्व करें. ऑलराइट, सो ये हो गया. अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे. नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज अल्फ्रेड शुट्ज अप्रोच फॉल्स इन द फिलोसॉफिकल ट्रेडिशन ऑफ. ये वाला क्वेश्चन मैंने डायरेक्टली नेट JRF से लिया है, बाकी सारे क्वेश्चन मैंने खुद बनाए हैं. तो एक क्वेश्चन मैंने डायरेक्टली इसलिए ले लिया कि आप देखो क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट नहीं आते हैं. सो अल्फ्रेड शुट्ज, जिन्होंने मेरी पहली वीडियो देखा है उसमें मैंने कोड बताया था पास. P फॉर फिनोमिनोलॉजी, AS फॉर अल्फ्रेड शुट्ज. वो था ना पास पास, जो कॉलेज में पहले आता था. राइट. सो अल्फ्रेड शुट्ज, P फिनोमिनोलॉजी. तो क्या हो गया ये? अब इथनोमेथोडोलॉजी से कौन एसोसिएटेड है? हैरोल्ड गारफिंकल. ड्रामाटर्जिकल अप्रोच किनका है? अर्विंग गॉफमैन का. अर्विंग गॉफमैन किस पर्सपेक्टिव से हैं? सिंबॉलिक इंटरैक्शनिस्ट पर्सपेक्टिव से हैं. और बताओ अर्विंग गॉफमैन के बारे में कि इनके इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या क्या हैं. फॉर एग्जाम्पल स्टिग्मा, यस, टोटल इंस्टीट्यूशन, right? Total institution. Okay. Very famous book of Irving Goffman, Asylum, in which he talks about mental health. And that book was so great that it changed America, particularly the way they were looking at say mentally ill patients. All right. Another most famous book of Irving Goffman is Representation of Self in Everyday Life. So Irving Goffman, symbolic interactionism, perspective like, concept like dramaturgical approach or dramaturgy, in which he talks about backstage and front stage. Another concept, stigma, asylum, total institution. All these things should be on the tip of tongue. हो जाएगा, अभी नहीं है,
हो जाएगा, परेशान नहीं होना है, ग्रेजुअली हो जाएगा. ओके, एंड देन हु इज अनदर, ओके, सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म. सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म से कौन कौन एसोसिएटेड है? एक तो ड्रामाटर्जिकल अप्रोच वाले, राइट. सबसे इंपॉर्टेंट सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म से क्वेश्चन, चलो यही ले लो कि हु कॉइन्ड द टर्म सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म? नॉट जीएच मीड, मीड का स्टूडेंट. अब वो कौन था? हर्बर्ट ब्लूमर. ऑलराइट, एक और थिंकर, मीड हो गए, ब्लूमर हो गए, एक और थिंकर बताओ? सीएच कूली, लुकिंग ग्लास सेल्फ वाला, और अर्विंग गॉफमैन तो हो ही गया. सो दिस इज अबाउट सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म. सो आई होप गाइज कि इन 10 क्वेश्चन में मैंने करीब 20-22 कॉन्सेप्ट तो जरूर बताए होंगे अच्छे से, और कई सारे क्वेश्चन आते हैं. वट एवर आई सी, I discuss only those things which are most important. So जो मैं बताता हूं वो तो आपको आना ही आना चाहिए. It should be on the tip of your tongue. उसके ऊपर आप बिल्ड अप करो, एंड ग्रेजुअली मैं मोर क्वेश्चन लाऊंगा. तो रिपीट तो नहीं करूंगा ना हर बार. अगली बार अगर अर्विंग गॉफमैन की बातें करता हूं तो 1-2 कॉन्सेप्ट एक्स्ट्रा बताऊंगा. चलो, एक और बंदा था जिसने डिफरेंशियल एसोसिएशन थ्योरी दिया था, राइट. बताओ वो कौन है? उसका भी जो पर्सपेक्टिव था वो सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म ही था, राइट. और उसने व्हाइट कॉलर क्राइम के बारे में भी बात किया है. अभी मैंने व्हाइट कॉलर वर्कर की बात किया ना, राइट. व्हाइट कॉलर, अमेरिकन मिडिल क्लास, किसकी किताब है ये? ऑफ कोर्स C.W. मिल्स का. सो हु टॉक्ड अबाउट व्हाइट कॉलर क्राइम एंड व्हाई व्हाइट कॉलर क्राइम इज यूनिक? White collar crime is unique because it is committed by very socially respectable and accomplished person. White collar crime ये नहीं है कि एक छोरा मार दिया किसी को. No, that's not the white collar crime. Very often these white collar crimes are associated with their occupation. यानी कि कोई से IAS IPS है किसी पोस्ट पे. अभी एक झारखंड की IAS को जेल हो गया क्योंकि उनके घर से करीब 28 करोड़ रुपए मिले थे. Alright, so that is called white collar crime. यहां पे ब्लड बाथ नहीं होता, वायलेंस नहीं होता अंडरवर्ल्ड की तरह. इट्स ए यूनिक वे ऑफ डूइंग क्राइम. आप यू शुड बी हाईली एजुकेटेड फॉर दैट. ऑलराइट, एंड ही आल्सो गिव द डिफरेंशियल एसोसिएशन थ्योरी. हु इज दैट गाय? प्लीज नीचे कमेंट में लिखो, कमेंट में लिखो, ठीक है. और अगला वीडियो में लेकर के आऊंगा. आप मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, उससे मेरे को मोटिवेशन मिलता है. एंड थैंक यू सो मच अगर आपने यहां तक देखा. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. ऑलराइट.